Dear students, we are discussing earthquake. We used to say earthquake is a natural geological phenomena. Earthquake is a natural geological phenomena which takes place due to sudden tremor, due to sudden movement of our earth crust. This very phenomena takes place in a very less time. This very phenomena takes place within a second, within very few seconds, but its harmful effect is very, very high. In our previous video, we have studied about definition of an earthquake, means what is an earthquake. We also discussed what are its different effects and what is the cause of this earthquake. Now we will discuss prediction of an earthquake. अर्थक्वैक की भविष्यवाणी करना, क्या हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अर्थक्वैक होने वाला है? देन वी यूज टू से इट इज़ वेरी हाईली डिफ़िकल्ट टास्क, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर अर्थक्वैक विल अकर. अर्थक्वैक कब होगा और कहाँ होगा, इसकी भविष्यवाणी कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. बट with the advancement of science and technology, now we have a device named seismometer by the help of which we can detect source of seismic waves. लेकिन जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ते गया जो है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने के चलते हमारे साइंटिस्टों ने एक इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट किया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है हुज नेम इज सिस्मोमीटर, by the help of which we can detect cause of these seismic waves. Seismic wave का क्या कारण है, right? But we can't predict it completely. Now question is this, हमने यह कहा था near about per day in whole world 800 earthquake take place, right? Out of these earthquakes, some are very weak, some are of moderate strength, whereas some are really highly intense, really highly dangerous. It means that intensity of different earthquakes are different. Then question is this, how we can measure intensity of an earthquake? We used to say damaging effect, destruction effect of an earthquake depends on many factors. One major factor is intensity, power of an earthquake, right? Damaging effect of an earthquake depends on many factors. One major factor is intensity, or you can say power of the earthquake. When power of the earthquake, when intensity of the earthquake will be more, its damaging effect will be also more. There was a scientist, Dr. Charles F. Richter. He developed a scale known as Richter scale, means in honor of his name. That scale is known as Richter scale, which is used to find intensity of an earthquake. राइट, एक स्केल बनाया गया है, उस स्केल से हम लोग अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को नापते हैं. नेम ऑफ दैट वेरी स्केल इज रीचर स्केल, विच वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर चार्ल्स एफ रीचर. दिस स्केल measures a strength of an earthquake in term of amplitude of seismic wave, एम्पलीट्यूड ऑफ शॉक वेव. या वेव होता है, वेव का जो है, वेव के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड. दिस वेरी एम्पलीट्यूड अगेन यू विल स्टडी इन चैप्टर साउंड.
क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड। तो अभी आपने कहा यस, जो वेव प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हलचल ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू हलचल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट अपने मीन पोजीशन से राइट कितना गया, लेफ्ट कितना गया, आगे कितना गया, पीछे कितना गया, ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, दैट वेरी डिस्टेंस अपने मीन पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में कितना गया, दैट वेरी डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, राइट। तो यह जो स्केल है जो अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। यह सिस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, राइट। यह सिस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मीन पोजीशन से ज़्यादा जितना दूर तक प्लेट जाकर मूव करेगा उतना ही ज़्यादा यह डिस्ट्रक्टिव होगा, राइट। What are the merits of this very scale? Then we used to say this scale is not a simple linear scale. यह लीनियर स्केल नहीं है। लीनियर स्केल तब होगा जबकि एम्पलीट्यूड अगर दोगुना हो तो इसका डिस्ट्रक्शन इफेक्ट भी, डिस्ट्रॉइंग इफेक्ट भी दोगुना हो जाए। अगर 3 गुना हो तो 3 गुना हो जाए, अगर आधा हो तो आधा हो जाए। वैसे स्केल को लीनियर स्केल कहते हैं, बट इट इज नॉट, दिस वेरी स्केल इज नॉट लीनियर स्केल। ऑन दिस स्केल an increase of 2 in the magnitude shows 100 times more destructive quake। अगर इस स्केल में अगर आप जो है वैल्यू 2 से बढ़ा रहे हैं तो 2 मीन्स उसका जो डिस्ट्रक्शन इफेक्ट होगा वह होगा 10 to the power 2 मीन्स 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर अभी मेरा 5 है और बढ़ा करके हमने 2 किया, अब बढ़ा करके हम 2 बढ़ा करके हमने 7 किया, मीन्स 2 से हमने बढ़ाया, तो अभी जितना है उससे 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव या क्वेक होगा, राइट। नाउ कम ओवर कि ऑन रिचर स्केल इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक विल बी दिस देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, राइट। फर्स्ट कम ओवर 2.5। If magnitude is 2.5 on Richter scale, then this type of earthquake generally not felt। हम लोग उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं, धरती काँपी या नहीं काँपी पता ही नहीं चलेगा, बट दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर जो मशीन है वह दिखा देगा कि हाँ भूकंप हुआ था, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसका वैल्यू जो था, इंटेंसिटी इतना था। इफ इट इज़ 3.5, अगर मैग्नीट्यूड 3.5 है, कैन बी फेल्ट बाय मेनी पीपुल, बहुत लोग इसको महसूस कर लेंगे कि हाँ भूकंप आया है। इफ इट इज 4.5 देन देयर विल बी सम लोकल डैमेज, बिल्डिंग में क्रैक आ जाएगा, डैम में क्रैक आ जाएगा, राइट। एंड इफ मैग्नीट्यूड इज 6, इफ इंटेंसिटी ऑन ओवर रिचर स्केल इज 6 देन इट इज अ डिस्ट्रक्टिव क्वैक। यह जो भूकंप होगा वह डिस्ट्रक्टिव होगा, जान माल की क्षति करेगा। इफ इट इज 7 देन इट विल बी मोर डिस्ट्रक्टिव क्वैक, यह और बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति करेगा, राइट। एंड इफ इट इज 10 और अबव, अगर 8, इफ इट इज 8 और अबव, अगर 8 से अधिक है, 8 है या 8 से अधिक है, तो यह जो अर्थक्वेक होगा इज एबल टू, विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय कंप्लीट इन पॉपुलेशन, पूरे शहर को तहस नहस कर देगा, पूरी जिंदगी खत्म कर डालेगा, राइट। आई एम टेलिंग यू वंस ए टाइम इन गुजरात देयर इज ए प्लेस भुज, वहाँ पर भूकंप आया था कि वहाँ जो था इसका इंटेंसिटी जो था अर्थक्वेक का दैट वाज मोर देन 8, और वहाँ का पूरा भुज नेस्ताभूत हो गया था। पूरा का पूरा भुज जो है एकदम जो है सारे बिल्डिंग ध्वस्त होकर के प्लेन हो गए थे, समझिए, राइट। नाउ कम ओवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, हम लोग अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं, राइट। अर्थक्वेक कैन अकर एट एनी टाइम, मे बी इन डे और मे बी इन नाइट, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है,
अभी आपने यह पढ़ा था, हमने आपको कहा था वी कांट प्रेडिक्ट इट, हम लोग इसके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भूकंप आने वाला है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम एडवांस में हम लोग भविष्यवाणी कर लें कि हाँ कल परसों या इस समय इतने घंटे बाद भूकंप आने वाला है। इफ अर्थक्वेक अकर इन ए पॉपुलेटेड एरिया, अगर अर्थक्वेक पॉपुलेटेड एरिया में होता है, इट कैन कॉज डेथ एंड इंजुरीज एंड प्रॉपर्टी लॉस। अगर पॉपुलेटेड एरिया में होगा, बहुत लोग इसमें मरेंगे, बहुत घटनाएं होंगी, ढेर सारी जान माल की क्षति होगी। इफ वी लिव इन अ सिस्मिक जोन, अगर हम लोग सिस्मिक जोन में रहते हैं, क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज सिस्मिक जोन, यह सिस्मिक जोन क्या होता है, राइट, यह सिस्मिक जोन क्या होता है, देन सिंपली वी टू से दैट वेरी जोन इन विच अर्थक्वेक्स अकर्स फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, लाइक जापान। अगर वैसे में हम लोग जगह में रहते हैं, देन वेयर अर्थक्वेक्स अकर फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा आते हैं, वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस, हम लोगों को नीचे दिए गए जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। नंबर 1, all the buildings in seismic zone need to be designed so that they can withstand major earthquake। हमारे जो अगर सिस्मिक जोन में रहते हैं तो हम लोगों को बिल्डिंग ऐसा बनाना चाहिए जो मेजर अर्थक्वेक को सह सके। मीन्स आपका बिल्डिंग जो होना चाहिए दैट शुड बी क्वैक सेफ। क्वैक सेफ मीन्स अर्थक्वेक से सेफ होना चाहिए, राइट। ड्यू टू एन अर्थक्वेक सम बिल्डिंग्स में कैच फायर। ये अर्थक्वेक जब आएगा तो किसी किसी बिल्डिंग में जो है आग पकड़ सकता है, दैट मे कैच फायर। सो इन टॉल बिल्डिंग्स देयर शुड बी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। सो इसलिए बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मकानों में, बिल्डिंग्स में अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। सेफर प्लेसेस इंडोर एज वेल आउटडोर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। लोगों को यह पता होना चाहिए कि अंदर में हम लोग कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर में हम लोग कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में है आप जो है तो उससे बाहर निकालने का एक उसमें एक प्लान ऐसा होना चाहिए, ऐसे रास्ते होने चाहिए कि संकट की घड़ी में जितने लोग उसमें रह रहे हैं उनको जल्दी से जो है एक इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला जा सके टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। डिसास्टर मैनेजमेंट सप्लाइज, फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। जब घटनाएं होती हैं उस समय जो है लाइट का ज़रूरत पड़ता है, फर्स्ट एड बॉक्स का ज़रूरत पड़ता है। दी आर नोन एज डिसास्टर मैनेजमेंट सप्लाइज। आपदा प्रबंधन यंत्र ये सभी अवेलेबल होने चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस अर्थक्वेक के समय क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले आइए कि फॉर अ पर्सन प्रेजेंट इनसाइड ए बिल्डिंग, आप एक घर में हैं और अर्थक्वेक आ गया है, देन व्हाट शुड यू डू? नंबर 1, टेक शेल्टर अंडर टेबल। टेबल के अंदर छिप जाइए एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स। और वहाँ तब तक रहिए जब तक कि भूकंप खत्म ना हो जाए, हलचल खत्म ना हो जाए, राइट। कहेंगे टेबल के नीचे रहने से क्या फ़ायदा होगा? यस, टेबल के आप नीचे रहेंगे, अगर कुछ भी ऊपर से गिरता है, ऊपर वाले सामान रखने वाले रैक्स होते हैं उस पर गिरेगा तो आप पर डायरेक्टली नहीं गिरेगा, राइट। और तब तक टेबल के नीचे रही जब तक कि भूकंप, जब तक कि हलचल खत्म ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। लंबे ऑब्जेक्ट्स लाइक अलमीरा, भारी ऑब्जेक्ट लाइक अलमीरा और क्या कुछ जो है उसके पास नहीं रहिए, क्योंकि भूकंप हो आएगा, हमारी धरती हिलेगी तो वह जो है अलमीरा वगैरह गिर भी सकता है। तो अगर आप टॉल ऑब्जेक्ट्स के पास खड़े हैं या बैठे हैं, देन दैट टॉल ऑब्जेक्ट मे फॉल ऑन यू। डू नॉट गेट अप इफ़ यू आर इन अ बेड। अगर बेड पर हैं तो आप उठिए नहीं, बेड पर सोए रहिए। और तो और क्या कीजिए, अपने सर को तकिया से ढक लीजिए। क्यों? क्योंकि आप खड़े होंगे तो जिस तरह से आपका बिल्डिंग हिलेगा, जिस तरह से आपका बिल्डिंग हिलेगा, जिस तरह से आपका बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिलेगा, राइट, जिस तरह से आपका बिल्डिंग हिलेगा उसी तरह से आप भी हिलेंगे, राइट।
और जब आप भी हिलेंगे तो आप गिर सकते हैं। और तो और क्या कीजिए, बेड पर सो जाइए और अपने सर को तकिया से ढक लीजिए। क्यों? क्योंकि हाथ पैर पर अगर ऊपर से कोई सामान गिरेगा तो हाथ पैर तो बन जाएगा। अगर सर फूट गया, मीन्स अगर सर खराब हो गया तो शायद भगवान जी दोबारा सर नहीं देंगे, राइट। स्टे इंडोर स्टिल शेकिंग स्टॉप्स एंड इट इज सेफ टू मूव आउटसाइड। जब तक शेकिंग रुके नहीं, जब तक हलचल रुके नहीं, जब तक अर्थक्वेक रुके नहीं, तब तक आप अंदर नहीं रहिए। तब निकलिए जब बाहर निकलना सेफ हो। मेजर इंजुरीज occur when people inside the building attempt to move to a different location within the building or try to leave it। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर घटनाएं तब होती है जब भूकंप आया होता है और लोग बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागते हैं या कहीं छिपने के लिए इधर उधर भागते हैं। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अगर कोई मान लिया जाए, अगर एक ही भागने का रास्ता हो, अगर एक आदमी गिर गया तो सारे के सारे लोग अपना जान बचाने के लिए उसके शरीर पर से चलते हुए पार हो जाएंगे, लेकिन उसको नहीं उठाएंगे। तो मेजर घटनाएं जो होती हैं जनरली, जिस समय आप बिल्डिंग से भाग रहे होते हैं या कहीं छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय होती है। मीन्स भूकंप के चलते घटनाएं नहीं, भूकंप के चलते घटनाएं नहीं, भूकंप से बचने के चलते घटनाएं। एंड नाउ फॉर अ पर्सन कॉट आउटसाइड इन द ओपन, अगर आप बाहर में पकड़े गए हैं, भूकंप आ गया है और उसमें बाहर में हैं, देन व्हाट यू शुड डू। नंबर 1, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्लियर स्पॉट हो जहाँ भूकंप से कोई डर नहीं हो। वह जगह हो सकता है बिल्डिंग से दूर, बिल्डिंग के पास नहीं, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा तो आप साफ हो जाएंगे। ट्रीज से दूर, ट्रीज गिरेगा आप साफ हो जाएंगे। ब्रिजेस से दूर, ओवरहेड पावर लाइन, बिजली की तार जाते हैं उससे दूर, क्योंकि भूकंप आएगा तो इलेक्ट्रिक पोल हिलेगा तो वायर टूट कर गिर सकता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक पोल के नीचे रहेंगे देन देयर विल बी प्रॉब्लम। ड्रॉप टू द ग्राउंड, खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है सो जाइए, वाइज सो जाइए, मैंने आपको बता दिया है। डू नॉट कम आउट इफ इन अ मूविंग व्हीकल, अगर आप मूविंग व्हीकल में हैं तो आप बाहर नहीं निकलिए। ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे चलिए या नहीं तो रोक लीजिए। टू अ क्लियर स्पॉट एंड स्टे इनसाइड, अंदर ही बैठे रहिए। कम आउट ओनली व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब ट्रेमर रुके, जब अर्थक्वेक रुके, हलचल रुके, तब बाहर निकलिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर द क्वैक, जब क्वैक खत्म हो गया है, जो हानि होना था वो हो गया, अब हमको खत्म होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नंबर 1, स्टे काम फॉर अ वाइल, शांत रहिए, अपने मन को शांत कीजिए। एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स, ऐसा नहीं कि भूकंप खत्म हो गया तो आप घर से निकल के इधर उधर भागने दौड़ने लग जाइए। आपने पढ़ा है आफ्टर भूकंप के बाद भी आफ्टर शॉक्स आते हैं, भूकंप के बाद भी भूकंप आते हैं। एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स, आशा कीजिए कि वो आएगा, चांसेस हैं उसके आने के, राइट। दिस शॉक्स कैन काउज एडिशनल डैमेज, आप इधर उधर कूदने लग गए और वह जो है आफ्टर शॉक्स आ गया और उसके चलते आपका बिल्डिंग टूट गया, व्हाट विल हैपन, यू कैन थिंक। बी अवेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी, आपने यह कहा था ड्यू टू दिस वेरी अर्थक्वेक सुनामी कैन अकर। इफ यू आर लिविंग इन अ कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, देन देयर इज चांसेस ऑफ सुनामी। सो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग सुनामी से अवेयर रहो। केयरफुल्ली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज सप्लाईज, देखिए कि जो इस समय जो फर्स्ट एड मटेरियल्स होते हैं दे आर अवेलेबल और नॉट। यूज टेलीफोन ओनली इन इमरजेंसी, टेलीफोन को केवल और केवल इमरजेंसी में ही यूज़ करें। बिकॉज योर टेलीफोन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस अर्थक्वेक में भी वेव होता है तो हो सकता है कुछ इसका बैड इफेक्ट भी हो। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज, जो डैमेज्ड एरिया है जहाँ बिल्डिंग वगैरह में क्रैक आ गया है वहाँ से दूर भागिए, वहाँ से दूर रहिए, क्योंकि व्हेन आफ्टर शॉक्स विल कम तो वो उसको गिरा सकता है। हेल्प द इंजर्ड वन, जो
घायल हो गए हैं, विच दिस वेरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प द इंजर्ड वन, जो लोग घायल हो गए हैं उसकी सहायता करें, राइट? ओके।